Let's start this webinar with the recitation from Holy Quran, for which I request attention from all of you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Jazakallahu khairan. Greetings again, everyone. I am Muhammad Ali Abid, your host for this webinar. And I welcome you all to this guidance session being hosted for the sake of our new third year, inshallah. First, I would like to request all of you to keep your mics muted and videos off. And if you have any questions during the session, you can write them down in the chat and Ubaid Bhai will address them at the end of the presentation. Thanks a lot for that. Now, as you all know that our new year has started amidst the third wave of the pandemic. And as such, we have had no proper exposure to what this new year would entail. Changed departments, changed books, and on top of that, wards. Had we not been guided or at least eased into this new year slowly, it would have been hard to settle in. So for that, Minhal and Ali Rana have organized this guidance seminar
And we are really grateful that our respected senior Muhammad Ubaidul Arshad Bhai from final year कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है ताकि हमें properly guide कर सकें. The webinar will be recorded and the link provided so that those who could not join us now can also benefit from this later. Okay, over to you, Bad Bhai. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattahu ya fattahu ya fattah. Alhamdulillah. So I am Muhammad Ubaidul Arshad from final year MBBS, as you all know. So first of all, I would like to welcome you to third year. The third year is the most easiest year of all of your 5 years. Remember, जो आपका kindly mute your mics, जो इसका mic जो unmute है वो mute कर ले. So first of all, I would like to welcome you to third year. Remember, third year is the most easiest year of your 5 years. मैंने भी और बाकी लोगों ने भी, आप किसी से भी पूछें तो वो उन लोगों ने यही एक्सपीरियंस किया होगा कि जो थर्ड ईयर है, दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट ईयर. ये मोस्ट ईजीएस्ट ईयर क्यों है? व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, जब मैं सेकंड ईयर में था तो लोग कहते थे कि जो फोर्थ ईयर है वो ईजीएस्ट है. फोर्थ ईयर के एग्जाम्स दिए हैं, बट आई एम डैम श्योर कि जो सबसे ईजीएस्ट ईयर है दैट इज थर्ड ईयर. व्हाई दिस इज ईजीएस्ट ईयर, और ये क्यों इतना ईजीएस्ट ईयर है, और टेकिंग डिस्टिंक्शंस इन दिस ईयर इज इजी. क्या इसमें डिस्टिंक्शंस लेना इजी होता है? क्या हमने इसके अंदर अपनी एमएलई को साथ साथ चलाना है तो कैसे चलाएं? क्या हमारे लिए इसके जो इंटरनल असेसमेंट है वो कितनी मैटर करती है? इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? इसके डिपार्टमेंट्स जो होते हैं थर्ड ईयर में वो कैसे हैं? और क्या हमें थर्ड ईयर से अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देनी चाहिए? ये जो हमारे पास कोरोना पेंडेमिक की वेकेशंस चल रही हैं, इसमें क्या हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? So in the next few slides, in the next few minutes, I will be telling you each and everything, and at the end I will taking your questions, inshallah. So inshallah your results will be announced soon. So this is an ayat from the Quran. Inna laysa lil insana ma sa'a. Okay, man gets whatever he strives for. So you entered into the King Edward Medical University 2 years back, almost 2.5 years back. So you entered into this university with a dream. You had a dream. Your parents had a dream. Your friends, your relatives, your brothers, your sister had a dream. So कुरान में अल्लाह ताला के फरमा रहे हैं कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है. So आपने एक एम पाने के लिए कोशिश की. You strived for that. और अल्लाह ताला ने आपको एक जगह पे ले आए. So जब आपने स्टेप इन किया था किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो आपके आंखों में एक ड्रीम था. आज आप थर्ड ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए. योर रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड सून. आप थर्ड ईयर में पहुंच गए. आज अब अपने आप से सब लोग पूछें, क्या वो आप अपना ड्रीम, क्या वो उसी मेहनत से पूरा कर रहे हैं या नहीं? So you entered in the King Edward Medical University, you developed memories. In the last few years, you almost आपके 2.5 years थे, you developed memories, and you will be going to develop these memories in the whole of the 5 years. आप इन 5 साल में अपनी memories develop करेंगे. You will develop bad memories, you will develop good memories. So try to develop good memories. अभी जो recently final year का result आया है और इनका बैच निकला है, so I personally saw the tears in their eyes. उनके आंखों में मैंने आंसू देखे कि the care for their institution. So try to develop good memories. अभी आप सेकंड ईयर में हैं, अभी आपने 2 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आपके 2 साल हो गए हैं. जो बाकी ईयर्स आपके रह गए हैं, try to develop positive memories. इसमें आप positive memories develop करें. So coming towards the bookish things, the main purpose of this session. So first of all, I would like to introduce to you the departments of third year MBBS. जो third year MBBS के departments हैं, ये relatively, और आप किसी से भी पूछ लें, मेरे से भी पूछ लें, मैं भी यही कहूँगा कि I have experienced कि जो third year के departments हैं, that are the most easiest departments. और इसमें जो है ना cooperative departments जो सबसे ज़्यादा वो third year के हैं. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में से जो सबसे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास वो थर्ड ईयर के हैं. तीनों के प्रोफेसर्स बड़े अच्छे हैं. आपके जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं वो रिसेंटली चेंज हुए हैं. प्रोफेसर आरिफ रशीद मलिक, ही वाज वेरी ग्रेट.
वो भी बड़े अच्छे थे, और फार्माकोलॉजी के और सारे बड़े अच्छे हैं। सो जो डिपार्टमेंट्स आपके बड़े कोऑपरेटिव हैं, और आपके पास जो टेस्ट्स होते हैं, गौर से बात सुने, अभी जो मैं आपके कुछ स्लाइड्स में बातें बताऊंगा, इनको गौर से सुने, आपको फायदा होगा और बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यही जो स्लाइड्स है ना, ये मैंने आपके जो सीनियर्स अभी बैच जो फोर्थ ईयर में गए हैं रिसेंटली, उनको मैंने यही स्लाइड्स तब की बनी हुई हैं, ये जो अभी आपको स्क्रीन शो हो रही है, उनको भी मैंने कोरोना पेंडेमिक के स्टार्ट में बताई थी। सो डिपार्टमेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव इन थर्ड ईयर, डिपार्टमेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव। और इसके अंदर जो होता है, सिलेबस भी आपका थोड़ा होता है, सब्जेक्ट्स भी आपके पास इजी होते हैं। आई रिपीट अगेन, सब्जेक्ट्स भी आपके पास इजी होते हैं। और आपकी जो मेजर चीज होती है इंटरनल असेसमेंट। व्हाट इज द मेजर थिंग? दैट इज योर इंटरनल असेसमेंट। आई रिपीट अगेन, दिस इज योर इंटरनल असेसमेंट दैट मैटर्स द मोस्ट इन द थर्ड ईयर, and not only the pass fail, it's the marks that matter in your third year MBBS। जो आपके इंटरनल असेसमेंट जो टेस्ट में मार्क्स आएंगे ना, 50 मार्क्स में से, लेट्स सपोज 50 में से एक 50 आते हैं और एक 50 में से 49 आते हैं, रिमेंबर दे बोथ आर नॉट इक्वल इन द इंटरनल असेसमेंट। पिछले ईयर्स में ये होता था पास है या फेल है, दोनों इक्वल हैं, बट इन द थर्ड ईयर दीज टू आर नॉट इक्वल। सो ट्राई टू मेंटेन अ गुड इंटरनल असेसमेंट। व्हाट इंटरनल असेसमेंट इंक्लूड्स? Basically, internal assessment includes your attendance and your tests. I repeat again, your attendance and your tests. So coming towards the tests in the third year, जो टेस्ट्स होते हैं वो मॉड्यूल के बाद होते हैं। मैं आपको जो कोरोना पेंडेमिक या वेकेशन के अलावा की बात बता रहा हूँ, और फिर इस कोरोना पेंडेमिक या वेकेशन में क्या करना है। सो मैं आपकी बुक्स की तरफ आऊँगा, सब्जेक्ट्स की तरफ आऊँगा, MLE की तरफ आऊँगा, रिसर्च की तरफ आऊँगा, डिस्टिंक्शंस की तरफ आऊँगा, डोंट वरी। सो इंटरनल असेसमेंट में आपकी अटेंडेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड योर टेस्ट एंड योर स्टैंड अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये जो आपकी इंटरनल असेसमेंट जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी स्ट्रांग आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी, उतने ही स्ट्रांग आपके रिजल्ट्स होंगे। थर्ड ईयर में जो होता है ना, डिस्टिंक्शंस लेना बड़ा इजी होता है। आई रिपीट अगेन, थर्ड ईयर में डिस्टिंक्शंस लेना बड़ा इजी होता है। अभी रिजल्ट आया थर्ड ईयर का, यू कैन गो एंड सी, आप वहां जाके देख सकते हैं कि you will see that many students who had supplies in their second year or first year now are getting distinctions in third year। So third year में वो जो जिन बच्चों की बेचारों की supplies थी फर्स्ट ईयर में भी या सेकंड ईयर में, उनकी भी थर्ड ईयर में डिस्टिंक्शन है। So taking distinctions in the third year is very easy। आगे फोर्थ ईयर में भी इतना आसान नहीं है, फाइनल ईयर की इस दफा ज्यादा ही है, बट इट इज नॉट एन ईजी टास्क टू गेट डिस्टिंक्शंस। सो अगर आप अभी तक शुरू से यू हैव अ डिजायर टू गेट डिस्टिंक्शन, सो दिस इज योर परफेक्ट ईयर टू गेट डिस्टिंक्शन। द थर्ड ईयर इज परफेक्ट ईयर एज द डिपार्टमेंट्स आर कोऑपरेटिव। इंटरनल असेसमेंट, it is easy to get internal assessment, good marks internal assessment. Even I had 20 by 20 in forensic। मेरी forensic internal assessment कोई 100 मेरे जो 100 by 100 नहीं थे, 100% नहीं थी अटेंडेंस, फिर भी मेरी जो इंटरनल असेसमेंट थी वो 20 by 20 थी। प्रोफेसर शोड द इंटरनल असेसमेंट टू मी इन द वाइवा। सो इट गेटिंग गुड इंटरनल असेसमेंट इन थर्ड ईयर इज वेरी इजी। अब जो होता है ना थर्ड ईयर में ये होता है कि एक मॉड्यूल होता है, उसके बाद टेस्ट होते हैं। किस तरह इजी है, इसमें टेस्ट होते हैं, और वो टेस्ट भी बड़े मजे के होते हैं। हर 2 to 3 मंथ के बाद एक टेस्ट होता है एक सब्जेक्ट का, और जिस दिन एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट होता है उसके बाद एक दिन ऑफ होता है, फिर नेक्स्ट डे का नेक्स्ट टेस्ट होता है, फिर एक दिन ऑफ होता है। मतलब उस दिन क्लासेस नहीं होती, वार्ड्स होते हैं सिर्फ, लेकिन क्लासेस नहीं होती। हाउ चिल, हाउ कोऑपरेटिव द डिपार्टमेंट्स आर, कि आपका एक चैप्टर का टेस्ट हुआ है 9 से 10 बजे, अगले दिन आपका ना ऑफ होगा, फिर उससे अगले दिन आप यूनिवर्सिटी आएंगे और 9 से 10 बजे टेस्ट देंगे और वार्ड जाएंगे। सो वहाँ पे बच्चे तैयारी भी अच्छी करते हैं। और MLE को कैसे साथ लेके चलना है, दैट आई विल बी गोइंग टू टेल यू दिस इन द एंड। मैं आपको इसको एंड में बताऊंगा। सो गेटिंग गुड मार्क्स एंड मेंटेनिंग गुड अटेंडेंस इन थर्ड ईयर इज वेरी इजी, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो अभी आपका अब आपका जो है वो कोरोना पेंडेमिक का ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो इसमें हम किस तरह इंटरनल असेसमेंट को मेंटेन करें। रिमेंबर, ट्राई टू अटेंड योर लेक्चर्स। आप जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करें, आपको समझ आते हैं नहीं आते, आप उसके अटेंडेंस की नीयत से उसको मेंटेन करें। आपकी असाइनमेंट्स आ रही हैं, ये असाइनमेंट्स देखते होते हैं थर्ड ईयर वाले। रिमेंबर, आपको लगता होगा कि हम कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे, जो आपकी असाइनमेंट्स आ रही हैं इनको अच्छी तरह बनाएं, इनको अच्छी तरह बनाएं असाइनमेंट्स को। ये वो करेंगे, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे अगर क्लासेस नहीं स्टार्ट होती, टेस्ट नहीं होते, पिछली बार भी यही हुआ है, टेस्ट नहीं होते, स्टैंड अप्स नहीं होता, तो आपकी इंटरनल असेसमेंट किस पे बेस करेगी, इन असाइनमेंट्स पे ही बेस करेगी। सो आई रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ट्राई टू मेंटेन अ गुड इंटरनल असेसमेंट।
What is your internal assessment? Your attendance and your marks of your tests and your stand up. So those having good internal assessment will be getting distinctions, and getting distinction in third year is very easy as compared to the other years. So if you have a dream, if you had a dream, or if you अभी भी अगर आपका ड्रीम है कोई टू गेट द डिस्टिंक्शंस, टू गेट द गुड मार्क्स इन CIP सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में, अगर आपने 3 डिस्टिंक्शंस काउंट होती हैं, उसके मार्क्स आपने ऐड करवाने 3 डिस्टिंक्शंस के, तो दिस इज द बेस्ट ईयर. आई रिपीट अगेन, दिस इज द diamond year for of MBBS. Third year is the diamond year. I call third year as the diamond year and first year as the golden year. फर्स्ट ईयर गोल्डन ईयर क्यों होता है? फर्स्ट ईयर गोल्डन इसलिए था क्योंकि उसमें जब बच्चा आता है, जिस तरह इन्वायरमेंट में, जिस तरह उसकी स्टडी रूटीन बनती है, आगे भी वही चलती है, तो दिस इज गोल्डन ईयर. बट वो अगर दोबारा थर्ड ईयर में आगे रीथिंक करे कि मैं दोबारा से, अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया है, अल्लाह ताला हैज गिवन मी अनदर चांस, और मैं उसको किस तरह लेके चलूं. सो रिमेंबर, गेटिंग डिस्टिंक्शंस इन थर्ड ईयर इज वेरी इजी. So coming towards the subjects, as you all know that there are 3 subjects in third year. The first is the pathology, the second is your pharmacology, and third is your forensic medicine. So your pathology आपका, that is of 300 marks. Remember, that is of 300 marks. The pharmacology is of 300 marks, and the forensic medicine is of 200 marks. Pharmacology is of 300 marks, pathology of 300 marks, and forensic medicine of 200 marks. So out of 300, you will get distinction at 214 pathology. It is very easy to get 214 out of 300. You have a margin of 60 marks. Remember, you have a margin of 60 marks. 240 distinction at 214 pathology, 214 pharmacology, and 160 in forensic medicine. And I repeat again, getting distinctions in all of these 3 subjects is very easy. So coming towards the marks distribution of each subject, as you know that आपको TOS मैंने ग्रुप्स जो बनाया उसमें भी डाला था, सबके पास मिल भी गया था उनको जो आपका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, उसमें लिखा भी हुआ है कि अब थर्ड ईयर में गेम किस तरह चेंज होती है. थर्ड ईयर में गेम इस तरह चेंज होती है कि जो यहाँ पे आपके MCQs होते हैं, आई रिपीट अगेन, जो आपके MCQs होते हैं, ये अब 1 मार्क का नहीं होता, ये 1.5 मार्क का होता है. मतलब ये है कि अब आप अगर एक MCQ गलत कर रहे हैं, यू आर लूजिंग योर 1.5 मार्क्स, नॉट 1 मार्क्स. 30 MCQs होते हैं, 1.5 मार्क का होता है, और वही 45 मिनट्स होते हैं. द सेम बट द मार्क्स आर चेंज, द सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, बट द मार्क्स आर चेंज. कितने मार्क्स होते हैं? 1.5 मार्क्स होता है ईच MCQ. और मजे की बात ये है कि MCQ नंबर 1 से MCQ नंबर 30 तक मोस्टली MCQs जो होते हैं वही होते हैं जो टेस्ट्स में आए होते हैं, स्टैंड अप में आए होते हैं. I had made a PDF of that MCQs of last 10 years of the stand-ups test. उसका मेरे पास PDF है, I will share with all of you, वो मैं आपसे शेयर भी करूंगा. उसमें जो MCQs हैं, you can ask from your seniors even 30 by 30 MCQs from that PDF. You will get everything. आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने आपके लिए हर चीज़ प्रिपेयर करके रखी हुई है. सो पैथोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर साकिब, वेरी गुड पर्सनैलिटी, और टोटली जो उनकी डिस्टिंक्शन होती है ना, रिमेंबर आप वाइवा में कुछ भी सुना कर आए, और मैं आपको अपने बताऊं तो मेरे से कुछ भी नहीं सुना था उन्होंने, एक क्लास भी नहीं सुना था. सो अगर आपकी इंटरनल असेसमेंट अच्छी है, सो वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, और कुछ पूछ भी लेंगे तो उस पर बेसिस पे नंबर नहीं लगाएंगे. फार्माकोलॉजी का भी यही हिसाब है, लेकिन फार्माकोलॉजी में जो डिवीजन है ना, वो प्रैक्टिकल में मार्क्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं. 60 मार्क्स के प्रैक्टिकल हो जाते हैं, 60 का जो होता है ना वो वाइवा हो जाता है, और 15 मार्क्स जो होते हैं ना आपके वाइवा में, और 15 मार्क्स आपकी उसके अंदर रिटर्न के अंदर, वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं. 15 मार्क्स in your viva and 15 marks in your written, that are of your internal assessment. मतलब क्या है, पैथोलॉजी में 30 मार्क्स हैं आपके इंटरनल असेसमेंट में. इट इज़ वेरी इजी टू गेट 29 आउट ऑफ 30. रिमेंबर, अब फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में यूँ नहीं होता कि 20 by 20, इवन के जो हाईएस्ट मिले होते हैं वो 20 by 16 होते हैं या 14 होते हैं. सो इन थर्ड ईयर इट इज़ वेरी इजी टू गेट great marks in internal assessment. So you have 3 subjects, the pathology, the pharmacology and forensic medicine. बेसिकली ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 3, ये इनकी फर्दर 2 ब्रांचेज हैं, जनरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. जनरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी. सो बेसिक ये 3 सब्जेक्ट्स हैं. पैथोलॉजी में क्या है आपका, जनरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स, these are different things, forensic medicines and toxicology. It is not written here, यहाँ पे जो पैथोलॉजी सिर्फ लिखा हुआ है. So what are the different books? हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए towards different books? कौन से हमें लेक्चर्स सुनने चाहिए, और हमारा किस तरह हमने अपनी स्टडीज़ को लेके चलना चाहिए?
व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप सेंटर्ड अप्रोच, किस तरह हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ चलें कि एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर वी गेट ग्रेट मार्क्स और हमारी डिस्टिंक्शंस हों। और अब आप लोग फार्माकोलॉजी की देखें, इतनी ज़्यादा डिस्टिंक्शंस आई हैं थर्ड ईयर में। और फोरेंसिक की भी थोड़े एमसीक्यूज मुश्किल थे, तो फोरेंसिक के प्रोफेसर ने कहा कि मैंने 100 प्लस डिस्टिंक्शंस दी थी वायवे में, और वो सब की रिटर्न की वजह से नहीं है। सो द प्रोफेसर्स आर वेरी गुड, द डिपार्टमेंट्स आर गुड। सो आपने जो पैथोलॉजी है ना, पैथोलॉजी के लिए आप, आई विल प्रेफर, जो बुक्स हैं वो आगे बताऊंगा आगे स्लाइड्स में किस तरह पढ़नी है इनको। तो पैथोलॉजी के लिए आपने पढ़नी है ना, वो आप यूज़ करें मीडियम रॉबिन्स। जनरल पैथोलॉजी के लिए आप यूज़ करें मीडियम रॉबिन्स, और जो माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप लोग यूज़ करेंगे बुक, दैट इज ओनली एंड ओनली लेविंसन, दैट इज ओनली एंड ओनली लेविंसन। फार्माकोलॉजी को भी हम साइड पे रखते हैं। फोरेंसिक मेडिसिन, फॉर फोरेंसिक मेडिसिन यू विल यूज द बुक दैट इज एनआरए, दैट इज एनआरए, नसीब आर अमान। ही वाज अ केमिकोलियन, जो सबसे टॉप मोस्ट फोरेंसिक स्पेशलिस्ट थे। जो हमारा फोरेंसिक मेडिसिन है, फोरेंसिक मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, वो भी एनआरए के ऊपर ही। रिसेंटली उनके आपका जो प्रॉफ चल रहा था मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर ही उनकी डेथ हुई, जो फर्स्ट ईयर का चल रहा था उनकी डेथ हुई थी। और एनआरए जो है ना, नसीब आर अवान, उनकी बुक है। नॉट ओनली किम कोलिंस उसको पढ़ते हैं, पूरा पाकिस्तान पढ़ता है। और ये बात याद रखें, जो आपका डिपार्टमेंट है, जो आपका ऑटोप्सी सेंटर है, ऑटोप्सी विल स्टडी व्हाट इज ऑटोप्सी, जो आपका ऑटोप्सी सेंटर है, जो आपका डिपार्टमेंट है, उसके जो नाम है ना वो भी एनआरए है, नसीब आर अवान, नसीब आर अवान। सो इसके लिए आपने क्या पढ़नी है, एनआरए फोरेंसिक मेडिसिन। और टॉक्सिकोलॉजी के लिए आपकी पढ़नी है पारिक। व्हाई नॉट टर्स, मैनी पीपल विल से यू कि आप टर्स पढ़ो, व्हाई नॉट टर्स, ये टर्स क्यों नहीं पढ़नी, आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट स्लाइड कि टर्स क्यों नहीं पढ़नी। आपको लोग कहेंगे कि हमारे एमसीक्यू टर्स से आए, हमने क्वेश्चन टर्स से किए, हमारी डिस्टिंक्शन आ गई टर्स से, बट व्हाई नॉट टर्स, ओनली पारिक, आई विल बी टेलिंग यू। और फार्माकोलॉजी की आपने पढ़नी है, फार्माकोलॉजी की जो मेजर बुक है ना आपकी, बेसिकली वो बिग कैट्सन है, आपको कोई भी नहीं बताएगा। और वाइवे में जो एक्सटर्नल होता है ना, उससे पूछता होता है, और उसने बड़ी बेइज्जती भी की थी हमारी बारी काफी लोग। सो जो आपकी मेज बुक है ना, वो बिग कैट्सन है। और आपके पास डिफरेंट बुक्स हैं, मैं आपको अप्रोच बताऊंगा किस तरह करनी है। आपके पास मिनी कैट्सन है, आपके पास कैप्लान है, कैप्लान के लेक्चर्स हैं, आपके पास लिपिनकोट फार्माकोलॉजी है, यू हैव लिपिनकोट फार्माकोलॉजी, दैट इज अ वेरी गुड बुक, एंड यू विल बी हैविंग डिफरेंट नोट्स। फार्माकोलॉजी क्योंकि ना डिफरेंट एक स्प्रेड थी, तो मैंने कोरोना पेंडेमिक में ये किया था पिछले साल कि मैंने पीडीएफ बना दिए थे कि आपको वो पीडीएफ आपके पास शेयर हो जाएंगे, मैंने ग्रुप में शेयर भी करता रहता हूँ, जनरल फार्माकोलॉजी का, एएनएस का, सीवीएस का, सीएनएस का, उसके अंदर जो आपकी किस तरह अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स फार्माकोलॉजी, कि मेरे पास कौन से टॉपिक्स होने चाहिए जो मैंने हर हाल में किसी ना किसी बुक से करने हैं। आपको बिग कैट्सन में भी वो टॉपिक्स नहीं मिलेंगे सारे, कुछ उसमें से लिपिनकोट में होंगे, कुछ उसमें से कैप्लान के अंदर होंगे, कुछ उसके अंदर से आपके मिनी कैट्सन के अंदर होंगे, कुछ उसके अंदर से बिग कैट्सन के अंदर होंगे। सो वो आपको टॉपिक्स कैसे पता लगेंगे, कोई नहीं बताएगा। सो उसके लिए मैंने वो पीडीएफ बना के रखे हुए हैं, वो आपको किम यूनाइटेड पे भी मिलेंगे सारे पीडीएफ्स, और वो मैं ग्रुप जो मैंने व्हाट्सएप पे बनाया है उस पर भी शेयर कर देता हूँ। So these are your 3 subjects. This is a general summary of your 3 subjects. So coming towards the forensic medicine, this is very important. CID वाला काम है, forensic medicine. So for the forensic medicine, I have made a 3 T's formula. 3 T's formula. ये 3 T's फार्मूला किस लिए मैंने बनाया है? ये 3 T's फार्मूला मैंने इसलिए बनाया है कि आप लोग इस पेंडेमिक में इन 3 टॉपिक्स को एटलीस्ट जब तक, क्योंकि ईद के बाद नहीं खुलनी यूनिवर्सिटी, बड़े इसके जो है ना चांसेस है नहीं खुलने के। सो एटलीस्ट आप इन 3 टॉपिक्स को कर लें, दैट इज 3 T's फार्मूला फॉर फोरेंसिक मेडिसिन। आई हैव मेड अ 3 T's फार्मूला, दैट इज ट्रॉमाटोलॉजी, thanatology and toxicology, that is 3T. Traumatology, this is the biggest unit of your NRA, forensic medicine. Thanatology, remember thanatology related to death, thana means death, and toxicology. So try to study these 3 topics, और इस 3 topics में जो most important topics हैं, I have mentioned them in below in the bullets. Different topics मैंने इसके अंदर mention किए हैं, you can take the screenshot, you can take the slide from me. The traumatology, अब आपने अब जो होता है ना, ये होता है कि प्रोफेसर आरिफ रशीद मलिक जो थे, उनके नोट्स से कुछ टॉपिक्स के उनके नोट्स से क्या थे, उनके कुछ टॉपिक्स के नोट्स थे, तो वो उधर से करनी होती थी चीज़ें। वो नोट्स आप वैसे भी ले लें, वो बड़े अच्छे हैं, दैट आर वेरी एक्सीलेंट। कोई भी प्रोफेसर आ जाए, एक्सटर्नल आ जाए, इंटरनल, उनके अंदर इस तरह की चीज़ें लिखी हैं जो एनआरए में नहीं लिखी। सो ट्रॉमाटोलॉजी को मैंने आपको बताया है एनआरए से करें, नोट्स से करें और पारिक से करें। कुछ चीज़ें इसकी पारिक से करनी है, रिमेंबर जो मैंने नीचे बुलेट्स में मेंशन किए हैं, ये आपने पारिक से करनी है, ये आपने कहाँ से करनी है, पारिक से करनी है। सो इसी तरह थैनाटोलॉजी है, एनआरए और पारिक से करनी है, जो मैंने नीचे बुलेट्स में लिखी है ना चीजें, ये आपने पारिक से करनी है। इस तरह टॉक्सिकोलॉजी है, यू हैव टू स्टडी टॉक्सिकोलॉजी फ्रॉम द पारिक, रिमेंबर
पारिक जो है ना, पूरा यूएचएस वाले पारिक ही पढ़ते हैं। और हमारे प्रोफेसर को बड़ी नफरत थी टर्स से, जो बच्चा टर्स का नाम लेता था ना उसको तो वैसे ही कमरे से बाहर निकाल देते थे। और पारिक सर से बड़ी मोहब्बत थी सर को। पारिक बहुत अच्छी बुक है, और पारिक ना शॉर्ट है। अच्छा, आप लोग टर्स पढ़ लेंगे, आप लोग कहेंगे टर्स पढ़ लो, टर्स इज अ वेरी एक्सटेंसिव बुक एंड इट इज अ पाकिस्तानी बुक। और आपको पता है पाकिस्तानी बुक का तो स्टैंडर्ड नहीं होता। और जो पारिक है इट इज एन इंडियन बुक, और इसके अंदर शॉर्ट समरी लिखी हुई है, हर चीज शॉर्ट समरी तो नहीं, अब जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल भी यही पढ़ता है। जो नया प्रोफेसर है जाहिर सी बात उसने भी ये पढ़ी होगी। टर्स तो किसी को पता नहीं होता, कोई कोलियन किसी ने चला दी टर्स। आई हैव स्टडीड टर्स द होल ईयर, मैंने सारा साल टर्स पढ़ी। और जो एंड पे आके स्टैंड अप में ना किसी ने मुझे कहा ये क्या तुम कर रहे हो, एक डेमो ने कहा, एक डेमो फ्रेंसी की, और उनका पारिक पढ़ो। और यकीन माने जब मैंने पारिक पढ़ी ना, दिल खुश हो गया और मेरे लिए जिंदगी आसान हो गई। और जो पारिक के अंदर जो चीजें थी, और वाइवे में सर ने पूछी और वो दूसरों को नहीं आती थी, मुझे आती थी। अल्कोहल की कंसंट्रेशन ब्लड में मालूम करने का फार्मूला पूछा था, वो नहीं लिखा हुआ टर्स के अंदर, और यूरिन के अंदर फार्मूला। सो सर खुश भी पड़े हुए थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप पारिक पढ़ें। क्यों पढ़ें पारिक, एक और वजह क्या है। टॉक्सिकोलॉजी में आपको हैरानी होगी, टॉक्सिकोलॉजी इज सेपरेट सब्जेक्ट फ्रॉम द फोरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में से जो है ना हमारे पास एक एससीक्यू है ना ओनली 6 मार्क्स का, और बच्चे इस पे बड़ा जोर लगा रहे होते हैं कि टर्स से पढ़ लो, इतने टेबल्स हैं, इतना इतना कर लो। only one SCQ of 6 marks, you will get only one SCQ of 6 marks from this section, the spatial toxicology में से आपका सिर्फ एक SCQ आएगा। आपके पास you have more than 48 poisons, you have more than 48 poisons, और उस poisons में से भी एक SCQ आएगा आपके पास। So I have mentioned here the most important poisons. Try to cover these poisons in your vacation, that is corona vacations. So try to cover these topics: traumatology from NRA notes and Parik, from the Parik they mentioned topics below, and thanatology and the toxicology that has 3 T's formula. So this is forensic medicine. You will enjoy forensic medicine. The department of forensic medicine is very extensive. जो पूरे पाकिस्तान, ये आपका एजाज है, केई को ये एक एजाज है कि जो केई का फोरेंसिक का डिपार्टमेंट है इतना एक्सटेंसिव, और इतनी लैब्स जो हैं डिपार्टमेंट की अंदर, वो पूरे पाकिस्तान में किसी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है फोरेंसिक के। वो पिम्स के अंदर नहीं है, वो शेख जायद के पास नहीं है। इवन के जो प्राइवेट वाले होते हैं ना, आप देखेंगे आप क्लासेस ले रहे होंगे ना लैब्स में, तो आपके पास वो आके ले रहे होंगे। सो प्रोफेसर वाज वेरी गुड, जो एनआरए था उसने डिपार्टमेंट बनाया, और उसी की बुक है। और उसने जो है ना डिपार्टमेंट के, आप यू विल सी द लेक्चर थिएटर बड़ा एक्सटेंसिव, फुल एयर कंडीशनड है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल लैब्स है ना, 5 लैब्स हैं। यू विल हैव फोरेंसिक एनाटमी, फोरेंसिक एनालिटिकल सेक्शन, फोरेंसिक बायोलॉजी, MLC and forensic autopsy. You have 5 sections, 5 labs हैं। हफ्ते में 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो एक बैच जो होता है वो फोरेंसिक एनाटमी में होता है, एक बैच फोरेंसिक बायोलॉजी में होता है। डिफरेंट टीचर्स होते हैं, और डिफरेंट उस लैब्स का जो स्ट्रक्चर अंदर से वो भी डिफरेंट है। फोरेंसिक बायोलॉजी में बायोलॉजिकल पॉइजन्स को आप बता रहे होते हैं, फोरेंसिक एनालिटिकल सेक्शन में वो आपको बता रहे होते हैं कि डिफरेंट ऑपरेटर्स कैसे हैं, वहाँ पे ऑपरेटर्स पढ़े हैं। फोरेंसिक एनाटमी में नीचे फोरेंसिक म्यूजियम है, आपने कभी देखा नहीं होगा, वो बेसमेंट में है, फोरेंसिक म्यूजियम है। फोरेंसिक ऑटोप्सी में यू विल बी डीलिंग विद ऑटोप्सी पोस्टमार्टम, चीर फाड़ जिसे आप लोग कह रहे होते हैं, वो आप लोग देखेंगे, और आपको पता लगेगा कि हाउ मच डिफरेंट इज कि एक कैडेवर जो आप फर्स्ट डे पे करते रहे हैं, जो 9 months और 10 months और 11 months पुराना होता है, और एक आपके पास गरम गरम लेटेस्ट बॉडी आ रही है, आपके पास फ्रेश बॉडी आ रही है, और उसको आप लोग जो है कट कर रहे हैं, और the blood comes out and the metallic taste of the metallic smell and you feel the taste of that blood. जब आप ब्लड उधर कर रहे होते हैं ना, छोटे छोटे बेबीज आ रहे होते हैं, यू कट दैट बेबीज, आप उनको देख रहे होते हैं, आपको करने देते, जो छोटे छोटे बेबीज को गोली मारी होती है उनको आप करते हो, उनका स्टमक देखते हो, उसके अंदर पॉइजन डिटेक्ट करते हो। सो इट इज अ वेरी गुड, इट इज जस्ट लाइक CID जो लोग देखते हैं उसमें भी वो एक डॉक्टर होता है जो कर रहे होते हैं, उसी की तरह आपको जो होता है ना वो बड़ा इंटरेस्ट वाला होता है। पहले तो हमारा बैच गया ना तो हमारे साथ कोई लड़कियां भी थी, वो उन्होंने कट मारा, वो 2-3 लड़कियां पीछे बेहोश होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा वही लड़कियां आगे जा रही थी और लड़के पीछे बेहोश हो रहे थे तो इट इज वेरी मच डिफरेंट। So coming towards the pharmacology. For pharmacology, I have made a 3 C's formula. 3 C's formula. For forensic, I have made a 3 T's formula, and for the pharmacology, I have made a 3 C's formula. This formula, ये फार्मूला मैंने किस लिए बनाया? ये फार्मूला मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोग कोरोना में एटलीस्ट ये टॉपिक्स कर लें। जिसने रिमेंबर, आखिर में ना एंड पे मैं आपको एक हदीस भी बताऊंगा कि दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चीजें ऐसी होती हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता, वो मैं आगे आखिर बताऊंगा। उसमें से एक टाइम है, अल्लाह ताला ने आपको टाइम दिया है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, लेक्चर्स हो रहे हैं ऑनलाइन, आप उसको चला के म्यूट करके छोड़ देते हैं। आपके पास अल्लाह ताला ने टाइम दिया है,
ट्राई टू यूटिलाइज दिस टाइम। अगर आप ये जो मैंने आपको 3 फोरेंसिक के टॉपिक्स बताए हैं, सिर्फ आई हैव ओनली टोल्ड यू 3 टॉपिक्स ऑफ फोरेंसिक एंड आई एम टेलिंग यू ओनली द 3 टॉपिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी। अगर आप ये सिर्फ 3 टॉपिक्स कर लेते हैं, रिमेंबर आपका जो 50% सिलेबस है वो कवर्ड हो जाता है। आप इसको, और ये एमएलई में भी है फार्माकोलॉजी, एमएलई वाले कर रहे होंगे, दे विल कैप्लान देख रहे होंगे, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड देख रहे होंगे, ये उसके अंदर भी है फार्माकोलॉजी। सो इसको आप इस तरह लेके चलें। वो एमएलई के मैं आखिर में बताता हूँ। सो आई हैव मेड अ 3 C's formula for the pharmacology, that is chemotherapy, that is CVS, and that is CNS. The chemotherapy, you will be getting 2 SEQs from the chemotherapy, you will be getting 2 SEQs from the CVS, you will be getting 2 SEQs from the CNS. So total 6 SEQs out of 10. And remember, each SEQ is of 3 marks, oh sorry, 9 marks. Each SEQ in the pharmacology is of 9 marks. So this is very important, the chemotherapy and the CVS and CNS. Remember, जिसने ये 3 टॉपिक्स कर लिए ना कोरोना में, उसकी तो मौजें लगी, उसकी डिस्टिंक्शन पक्की है। आज मेरे से लिखवा लें, जिसने ये 3 टॉपिक्स अच्छे से कर लिए कोरोना पेंडेमिक, उसकी डिस्टिंक्शन पक्की है, क्योंकि 6 क्वेश्चंस। अच्छा, इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं ना वो 7-8 टॉपिक्स हैं, और उन 7-8 टॉपिक्स में से मिला के 4 SEQs आने हैं। यू आर, अब आप ये देखें ना, ये अप्रोच होनी चाहिए मेडिको की कि हम किस तरह अप्रोच करें। अब वही बच्चे जो हैं इन कोरोना में या आगे जाके वही 8-7 टॉपिक बार बार अच्छे पढ़ते रहे और इन टॉपिक्स को अच्छा ना करें, सो दैट इज वेरी बैड। सो अब आपने फार्माकोलॉजी करनी किस तरह? अच्छा, जो एक चीज आप बिकैटसन देख लें, लिपिनकॉर्ड देख लें, आपको वहां नहीं मिलेगी, आई रिपीट अगेन, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो वो प्रोफेसर एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप कैप्लान भी देख लें, अगर प्रोफेसर आप वो भी सुनाएंगे कैप्लान वाली, बिग कैटसन वाली, वो वाली डिपेंडकॉर्ड वाली, वो प्रोफेसर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर कर भी ली तो वो मार्क्स नहीं देगा। वो क्या चीज है? दैट इज योर क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस एंड क्लासिफिकेशंस। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फार्माकोलॉजी इज योर classification. This is your classification. If you know the classifications of drugs in pharmacology, you know everything. If you know the classification of drugs in the pharmacology, you know everything. I repeat again. If you know the classification of drugs in pharmacology, you know everything. और क्लासिफिकेशंस कहाँ से करनी है? फॉर दिस आई हैड मेड सम पीडीएफ्स। ये मैंने प्रोफेसर्स के पास जा जाके डिफरेंट बुक्स ले लेके और उनसे अप्रूव करा के अब मेरे पीडीएफ्स देखेंगे आप, जिसके अंदर मैंने सीवीएस का बनाया है, कीमोथेरेपी का बनाया है, एएनएस का मैंने ग्रुप में डाला था अभी व्हाट्सएप वाले में, और कीमो यूनिवर्सिटी पे सारे पढ़े हुए हैं। ये मैंने लास्ट कोरोना में मेरे पास टाइम था फ्री, तो मैंने कहा कि चलो आई वांटेड टू गिव समथिंग टू माय यूनिवर्सिटी, कि मैं इसको इन रिटर्न, इसने मुझे बड़ा कुछ दिया इस यूनिवर्सिटी ने, इसको इन रिटर्न क्या दूँ। सो मैंने पीडीएफ बना ली कि अब वो आगे चल जाएंगे। उसमें मैंने वो क्लासिफिकेशन ली, अब उसमें जाके क्लासिफिकेशन देखेंगे, दैट क्लासिफिकेशन इज ओनली एक्सेप्टेबल। वो मैंने चीमा फार्माकोलॉजी, ट्राइपैथी फार्माकोलॉजी और प्रोफेसर्स की बुक से उठाई हैं, दैट इज क्लासिफिक। अब आप जब अभी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, आप उसमें पढ़ते हैं, जिस तरह लेट्स सपोज अल्फा ब्लॉकर्स, यू विल स्टडी द क्लासिफिकेशन अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा 1 स्पेसिफिक ब्लॉकर, अल्फा 2 ब्लॉकर, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ब्लॉकर्स। ये 3 हेडिंग हो जाएंगी। फर्दर फिर आप इसके अंदर डिफरेंट ड्रग्स पढ़ेंगे, टेम्सुलोसिन, ड्रक्साजोसिन, प्राजोसिन, लेट्स सपोज। ये जब आप लोग पढ़ लेंगे तो आप जो है ना वो, अच्छा एक और इसके साथ बात बता दूं, जो एएनएस है ना, एएनएस कीमोथेरेपी, सीवीएस और एएनएस में से भी 2 एससीक्यूज आने हैं। आप ख्याल करें कि 8 एससीक्यूज यहीं से हो गए। पीछे आपके पास पता क्या रह गया? पीछे आपके पास इतने ज्यादा यूनिट्स रह गए हैं, पीछे आपके पास ऑटोकॉइड्स रह गए हैं, पीछे आपके पास एनसेड्स रह गए हैं, पीछे आपके पास और एंडोक्राइनोलॉजी रह गई है। उसमें से सिर्फ 2 एससीक्यूज हैं, उसमें से सिर्फ 2 एससीक्यूज हैं। सो आपके पास ये अप्रोच होनी चाहिए। इन आप किसी को पता नहीं होता, वो इस अप्रोच को रखता नहीं है। आप इन 8 टॉपिक्स को अच्छी तरह कर लें, आई रिपीट अगेन, आप इन 8 टॉपिक्स को अच्छी तरह कर लें, सॉरी 4 टॉपिक्स को अच्छी तरह कर लें, आपके 8 एससीक्यूज हो जाएंगे। 4 टॉपिक्स से आपको 8 एससीक्यूज मेरे 9 मार्क्स ईच। अब आप बताएं आपकी डिस्टिंक्शन आएगी कि नहीं आएगी? अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो आपको होगा। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशन अच्छी करें, जो मैंने आपको बताई हैं वो करें, और आप दूसरी अपनी सोर्स भी यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मेरी ही यूज करें, लेकिन मैंने उस पर काफी मेहनत की, आपको वैसे नहीं मिलेंगी बुक्स में। आप वो पीडीएफ खोल के देखें, मैंने उस पर साइड पे हर जगह पे अटैच किया, और उस पीडीएफ के अंदर जो पॉइंट्स है ना उसको लाजमी पढ़ें। उस पीडीएफ के अंदर जो पॉइंट्स है ना वो चीजें आपको आनी चाहिए। मैंने उसके अंदर डिटेल नहीं लिखी पीडीएफ के अंदर, ये होता है फार्म, इस ड्रग का एक्शन, मैंने सिर्फ लिखा टेम्सुलोसिन, मैकेनिज्म एक्शन, हेडिंग दी, फिर मैंने लिखा क्लासिफिकेशन। ये मतलब आप चीज कर लें, वो मैंने गाइड के थ्रू बना दी, क्योंकि आई सफर्ड फ्रॉम दिस। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट डिस्टिंक्शन इन फार्माकोलॉजी, बट आई सफर फ्रॉम दिस क्लासिफिकेशन। माई सिस्टर हैव, मेरी बड़ी बहन ने मुझे मदद की, और उसकी वजह से मैं क्लासिफिकेशन बना सका और प्रोफेसर के पास जा सका। पिम्स का एक प्रोफेसर है, उन्होंने बड़ी मदद की। हाँ,
उन्होंने बड़ी मदद की जो हमारे पास है, AQ खान प्रोफेसर पिम्स के हैं, उन्होंने बड़ी मदद की मेरी। सो वो PDF बने, वो कोई इस तरह नहीं बुक से उठा के छापे मार दिए, वो बड़ी उन पर मेहनत लगी हुई है, उसके अप्रूवल हुए हैं। सो क्लासिफिकेशन आप अच्छी पढ़ें, आप क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, उस क्लास में जो ड्रग आती है सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है, सबका एडवर्स इफेक्ट सेम होते हैं, सबकी यूजेस होते हैं। सो आपसे उस अब आप पता है क्या, अब आपको ड्रग देते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेट्रोनिडाजोल, दैट इज फ्लाइजेल। अब आप उसकी क्लास देखते हैं, अब आप देखते हैं कि ये एंटीबैक्टीरियल है। अच्छा, अब आप देखते हैं एंटीबैक्टीरियल है कि एंटी प्रोटोजोल है, आप देखते हैं एंटी प्रोटोजोल है, फिर आप देखते हैं एंटी प्रोटोजोल में इसकी क्लास क्या है, फिर आप उसकी क्लास देखते हैं, फिर आप देखते हैं इस क्लास का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फिर आप वो चुप करके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख देते हैं। फिर इसी की क्लास की कोई और ड्रग पूछते हैं, तो फिर आप फिर सोचते हैं इसकी क्लास ये है तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होगा। कोई दुनिया जहाँ की ड्रग उठा के दे दें आपको उस क्लासिफिकेशन में लिखी होगी, you will be solving your questions and you will be getting 9 by 9 marks, not 8 by 9, you will be getting 9 by 9 marks. So फार्माकोलॉजी में आप क्लासिफिकेशंस पढ़ें, और कीमोथेरेपी एंटीबैक्टीरियल आते हैं, एंटीफंगल आते हैं, एंटीवायरल आते हैं, एंटी एलमेंथिक्स आते हैं। CVS में एंटी हाइपरटेंसिव आते हैं, एंटी एंजाइना, एंटी एरिथमिक ड्रग्स इन हार्ट फेलियर्स आते हैं। और ये शॉर्ट टॉपिक्स हैं। CNS थोड़ा लंबा है, इसमें एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एपिलेप्टिक्स और मसल रिलैक्सेंट्स, एनेस्थेटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स। दिस इज वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ प्रोफेसर जुजाजा। CNS is the favorite topic of Professor Zujaja, and CVS and ANS is the favorite topic of external CVS and ANS. So वाइवा भी उसमें से ही, SEQs भी उसमें से ही। अच्छा, बड़े लोग यहाँ पे ना गलती क्या करते हैं, वो अपना सारा टाइम यूज कर जाया करते हैं बाकी टॉपिक्स में। सो ट्राई टू फर्स्ट इन टॉपिक्स को आप करें। सो मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी फार्माकोलॉजी की। सो कमिंग टुवर्ड्स अवर next, that is my favorite subject, that is pathology. So in pathology you have microbiology and chemotherapy, general pathology. In pathology, in the pathology of third year, you have general pathology and microbiology. आपने ये, मैंने आपको एक शेड्यूल से बता रहा हूँ कि आप ये करें किधर से, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक्स आपके लिए कोरोना पेंडेमिक, जब तक आपकी वेकेशंस नहीं खत्म होती तब ये उसके अंदर आप कर लें। इसमें मैंने टारगेट बेसिकली किया माइक्रोबायोलॉजी। जो पिछला कोरोना पेंडेमिक में मैंने उनको यही बताया था माइक्रोबायोलॉजी करें, फिर उनको मैंने नेक्स्ट स्टेप बताया था। सो आप माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट करें। स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी, स्पेशल माइकोलॉजी, वायरोलॉजी। सो आप जो है ना इससे स्टार्ट करें। इससे अब आपने किस तरह स्टार्ट करना है। सो इसकी जो वीडियोस होती है ना, बड़ी अच्छी वीडियोस हैं, स्केची की वीडियोस हैं। आप स्केची की वीडियोस डाउनलोड करें और उनको देखें। रिमेंबर आपकी, अब आप इसमें से डिवीजन देख लें, जनरल पैथोलॉजी को साइड पे रखें। यू विल बी गेटिंग 2 SEQs फ्रॉम द बैक्टीरियोलॉजी ऑफ 9 मार्क्स ईच, बेसिकली 3 SEQs फ्रॉम द बैक्टीरियोलॉजी ऑफ 9 मार्क्स ईच, 9 + 9 + 9, और MCQs अलहदा 36 और 4 MCQs, तो 5 MCQs भी लगाएं। लेट्स सपोज 40 मार्क्स ही कर लें। 135 में से 40 मार्क्स सिर्फ बैक्टीरियोलॉजी के हैं। फिर माइकोलॉजी, वायरोलॉजी में से 1 SEQ है। अब वायरोलॉजी जो है ना बैक्टीरियोलॉजी से भी बड़ी है। अब बच्चे सारा टाइम वायरोलॉजी पे जाया करते हैं, हालांकि बैक्टीरियोलॉजी पहले करनी चाहिए। वायरोलॉजी और माइकोलॉजी में से ओनली 1 SEQ ऑफ 9 मार्क्स, और पैरासाइटोलॉजी में से अगेन 1 SEQ। सो यू सी के 5 SEQs आपके सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी में से 9 मार्क्स से। अब हार्डली आपको सच्ची बताऊं तो 1.5 मंथ लगता है माइक्रोबायोलॉजी को अच्छी तरह पढ़ने में, और आपके 5 SEQs हो जाते हैं ऑफ 9 मार्क्स ईच। सो आप इस अप्रोच से चलेंगे तो आपकी MLE भी होगी, आपकी डिस्टिंक्शन भी आएगी। आप सारों को देख लें, उन्होंने MLE में भी अच्छे मार्क्स लिए, उनकी डिस्टिंक्शंस भी हैं। और इवन मैंने आपको शुरू में बताया ना कि जिनकी सप्ली वगैरह थी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, अभी उनकी भी डिस्टिंक्शन आई है। सो थर्ड ईयर इज द गोल्डन और द डायमंड ईयर टू गेट डिस्टिंक्शंस। अगर आपका एम है, अगर आपने कभी भी नहीं भी है कभी, तो आपके साथ डिस्टिंक्शन का वर्ड आपके उसमें लिखा होना चाहिए ना। कभी तो आप 5 साल के बाद यहाँ से जाएं, किसी को कहें I had distinction in pathology, inshallah. I had distinction in pharmacology, inshallah. Say inshallah. I had distinction in forensic medicine. So किसी को तो आप कह सकेंगे ना कि I am a distinction holder, I am a gold medal. So एक और आपको मजे की बात बताऊं, getting gold medal in the third year is very easy. अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर गोल्ड मेडल लगे, आपको जब वोकेशन हो तो आप स्टेज पे आपकी मदर, आपके पेरेंट्स आपके साथ जाएं, दैट ड्रीम, वो जो फीलिंग्स होती है ना, वो आप फील नहीं कर सकते अभी, वो आप थर्ड ईयर में ले सकते हैं। वो आपको फोर्थ ईयर में नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, और फाइनली में तो और ही ज्यादा मेहनत है। सो आप वो थर्ड ईयर में ले सकते हैं। ये टैग आप अपने ऊपर थर्ड ईयर में लगा सकते हैं। सो बैक्टीरियोलॉजी और बायोलॉजी आप इसकी स्केचेस की वीडियो देख सकते हैं।
ठीक है, फिर आपने लेविंसन पढ़नी है। अच्छा, अब लेविंसन में ना हर बैक्टीरिया के अंदर लिखी होती है प्रिवेंशन एंड वैक्सीनेशन। आई रिपीट अगेन, आपको कोई नहीं बताएगा, आपके आधा टाइम बच जाएगा यहीं से। प्रिवेंशन एंड वैक्सीनेशन एंड ट्रीटमेंट, ये आपने नहीं करना। आई रिपीट अगेन, ये आपने देखना भी नहीं, इस पे क्रॉस लगा दें। फिर आपने बैक्टीरियोलॉजी में करना क्या है, आपने बैक्टीरियोलॉजी में एक बैक्टीरिया उसके स्पेशल फीचर्स करने हैं, उसके स्पेशल फीचर्स करने हैं आपने, उसके स्पेशल फीचर्स करने हैं। फिर उसकी जो डिजीज के क्लिनिकल फीचर्स हैं वो करने हैं, जो उसके डिजीज के क्लिनिकल फीचर्स हैं वो आपने करने हैं, ठीक हो गया। फिर आपने करना है उसके अंदर लैब डायग्नोसिस, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द लैब डायग्नोसिस। इवन द स्केची ने इस तरह नहीं आपको लैब डायग्नोसिस बताया। अभी आप एक पेज लें या पेन लें, अपने मोबाइल के ऊपर ये लिख लें, ये आपको कोई नहीं बताएगा। Whenever they ask, give the lab diagnosis of Staph aureus, let's suppose, give the lab diagnosis of Candida, give the lab diagnosis of Giardia, give the lab diagnosis of mumps, give the lab diagnosis of E. coli, give the lab diagnosis of Proteus। ये इंपॉर्टेंट है जो आ रहे हैं ना। जब भी आपको कहें, आप क्या लिखना शुरू होते हैं, दिस और इस तरह लिखाते हैं और मार्क्स आपको नहीं मिलते। फिर आप कहते हैं लिख के भी आए, डिस्टिंक्शन नहीं आई। सो इसमें आपने ना, यू हैव टू फिट दिस इन 3 हेडिंग्स, इन 3 हेडिंग्स। आई रिपीट अगेन, 3 और 4 हेडिंग्स, ये लिख लें, आपको भी नहीं बताएगा। आपसे लैब डायग्नोसिस पूछें, यू हैव टू फिट देम इन 3 डायग्नोसिस। द फर्स्ट हेडिंग इज योर स्टेनिंग, द फर्स्ट हेडिंग इज योर स्टेनिंग, द फर्स्ट हेडिंग इज योर स्टेनिंग। स्टेनिंग में करते हैं, ब्लड लेते हैं सैंपल, उसकी स्मेयर प्रिपेयर करते हैं, स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, उसको ग्राम स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, दैट इज स्टेनिंग और माइक्रोस्कोपी। बेसिकली ये सेकंड स्टेप होता है। जो फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है दैट इज कल्चर, दैट इज कल्चर। कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, फिर बैक्टीरिया को लेकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, फिर माइक्रोस्कोपी होती है। फिर आपकी जो थर्ड होती है दैट इज सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में आप ना स्पेशल एंटीबॉडी टेस्टिंग कराते हैं उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। सो दैट इज योर कल्चर, 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 माइक्रोस्कोपी एंड सीरोलॉजी। आई रिपीट अगेन। और फोर्थ हेडिंग होती है एनी स्पेशल टेस्ट। कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो इस हेडिंग में नहीं आते। लेट्स सपोज टाइफाइड इज वेरी, लेट्स सपोज कोरोना, यस कोरोना इज वेरी कॉमन। अब कोरोना में हम जो है माइक्रोस्कोपी नहीं करा रहे, स्पूटम माइक्रोस्कोपी नहीं करा रहे, हम क्या करा रहे हैं, इसके अंदर हम सीरोलॉजी मेजरली करा रहे हैं। वायरसेस तो वैसी वायरसेस का कल्चर नहीं हो सकता। सो इसमें सिर्फ एक हेडिंग श्रिंक हो जाती है, दैट इज सीरोलॉजी। पीसीआर, पीसीआर करा रहे हैं, लेवल जो हम लेवल डिटेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज 3 हेडिंग्स। आई रिपीट अगेन, इसको गौर से समझ लें, लिख लें, आपको कोई नहीं बताएगा। बुक में जब भी आप कोई बैक्टीरिया पढ़े ना, उसके ऊपर ये हेडिंग 3 ठोक दिया करें, क्या, कल्चर्स, माइक्रोस्कोपी एंड सीरोलॉजी, और चौथी एनी स्पेशल टेस्ट। तो ये आपने करनी होती है। आई रिपीट, लेकिन आपने क्या करना है बैक्टीरिया इन इसमें माइक्रोबायोलॉजी में, क्लिनिकल फीचर्स, उसके बाद आपने करनी है उसके क्लिनिकल फीचर, डिजीज कर रही है, उसकी पैथोजेनेसिस, यस द पैथोजेनेसिस आपने करनी है, फिर उसके लैब डायग्नोसिस। ये 3 चीजें आपने करनी होती हैं। और पैरासाइटोलॉजी में आपने करनी होती है उसकी लाइफ साइकिल भी। स्केची ने लाइफ साइकिल नहीं बताया। ये लोग सारे मार्क खाते हैं 9 मार्क्स के SCQ में कि वो लाइफ साइकिल नहीं करते और वो पूछते लाइफ साइकिल है। हमेशा आप पुराने पेपर देखने लाइफ साइकिल ही आता है, और स्केची में लाइफ साइकिल नहीं। स्केची आपको ये सारा बता देगी कि ये पैरासाइट ये करता है, ये नहीं बताएगी इसका लाइफ साइकिल। सो लाइफ साइकिल, सो एज आई हैव मेंशन्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, और इसी में इसे आते होते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट बैक्टीरियोलॉजी इज ग्राम पॉजिटिव कोकाई, द ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव रॉड्स related to GIT, the mycobacterium TB, gram positive rods, and the mycology Candida, Aspergillus, Cryptococcus tinea। And from the virology section, virology से ना आपने बिल्कुल लिमिटेड चीजें करनी है, ये जो मैंने आपको बताई है, इसके अलावा आपने कोई चीज नहीं करनी। बाकी स्केची भी ना देखें, क्योंकि ना इसमें से हाफ SCQ आता है, तो 6 मार्क्स का वो ज्यादा तो हेपेटाइटिस में से होता है, लेकिन इस दफा मुझे लगता है कोरोना से ही आएगा, लास्ट टाइम ही आया। सो HIV, herpes, हेपेटाइटिस, द कोरोना, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये लिखा हुआ है लेविंसन में, और स्केच की इस साल इसकी वीडियो भी रिलीज हुई है। रूबेला, मीजल्स, मम्स। पैरासाइटोलॉजी, इन द पैरासाइटोलॉजी यू विल बी डीलिंग विद एंटमीबा, जियार्डिया, क्रिप्टोस्पोरिडिज्म। ये जो मैंने आपको यहाँ पे जो मेंशन किया है ना, सिस्टोर्स, निमाटोड्स, ये ओनली द इम्पोर्टेंट मोस्ट मेंशन किया यहाँ पे। सो इस तरह आपकी अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स योर फोरेंसिक मेडिसिन, टुवर्ड्स द फार्माकोलॉजी एंड टुवर्ड्स द पैथोलॉजी। सो इसको हम अब एंड करते हैं। इसके अब जो बाकी जो चीज़ें रह गई थी हमारे पास, उसकी तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट मैं आपको एक हदीस बता दूं। सो इट इज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said there are 2 blessings which many people lose। जो 2 blessings अल्लाह ताला की होती हैं जो इंसान जिसकी कदर नहीं करते। These are the health and the free time for doing good। एक हेल्थ, कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है और काफ़ी केसेस आ रहे हैं, लोग जो है ऑक्सीजन के पीछे इंडिया में आप देख लें मर रहे हैं, और हमारे आसपास भी लोगों की डेथ्स हो रही हैं। अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, इसकी कदर करें, और फ्री वक्त दिया आपको, स्पेशली आप क्वारंटाइन में घर में हैं,
इसको भी आप यूटिलाइज करें। इन दोनों चीज़ों को आप यूटिलाइज करेंगे, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेंगे, ऐसी बरकत डालेंगे आपको यकीन नहीं आएगा कि यू विल गेटिंग डिस्टिंक्शंस, और आपकी हर काम, हर डिप्रेशन आपका आसान हो जाएगा। सो रिमेंबर दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर हेल्थ and your free time. So coming towards the last two topics, that is MLE and research. Yes, many people start studying MLE in the third year, और सो अपने साथ टैग लगाना होता है MD, MLE बॉय, MLE गर्ल, और रीडिंग रूम्स भर जाते हैं। और जो टैग का जो होता है ना, वो जुनून होता है कुछ लोगों को कि हमें लोग कहें ए मुंडा MLE पर्दा पे है, ये MLE कर रहा है, ये MLE। बच्चे जब होते हैं ना, वो थोड़ा सा चौड़े होके चलते हैं कि लोग हमें देखेंगे MLE कर रहा है, MLE कर रहा है। सो यस, यू विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम, अभी काफी लोगों ने कर दी होगी MLE। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सब्जेक्ट्स जो है ना, बेसिकली आप MLE करें, और ज़रूर करें। और उसको आप जो है ना, अब देखें 3 मंथ्स बाद आपके होने हैं पेपर, टेस्ट होना है, तो आप फर्स्ट 2 मंथ्स में MLE का पढ़ें, ठीक है, या 1 मंथ के बाद भी अगर आपका टेस्ट होता है, आप फर्स्ट 2 वीक्स MLE का पढ़ें, सेकंड जो 2 वीक्स है आप टेस्ट का पढ़ें। इतने टेस्ट लंबे होते नहीं, एक चैप्टर होता है। सो MLE, आप MLE में तो वैसे भी आपने फार्माकोलॉजी कर ली होगी, फोरेंसिक आपकी जो है वो हफ्ते में हो जाती है, एक टॉपिक अच्छी तरह, एक एक घंटा भी दें। पैथोलॉजी भी आपकी जो होती है वो MLE में आ जाती है बेसिकली, और स्पेशल आती है वैसे तो माइक्रोबायोलॉजी भी आप कर लें, वो भी आ जाती है, तो वो भी बेसिकली आपके पास 1 वीक ले लेगी। सो इस तरह आपके जो है ना सारे काम हो जाएंगे MLE के। सो MLE करें, आप ज़रूर करें, अपना टाइम यूटिलाइज करें, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, MLE करते करते ना अपने घर वालों को ना भूल जाइएगा। आई हैव सीन मैनी पीपल, वो रेडियो रूम में बैठे रहते हैं, घर नहीं जाते। येस, दिस रिक्वायर डेडिकेशन, बट रिमेंबर योर पेरेंट्स आर अबव देन एवरीथिंग। आपके जो पेरेंट्स हैं ना, ये हर चीज़ से सुपीरियर हैं। क्योंकि मैंने देखा लोग MLE करते करते हॉस्टल में बैठे थे, उनके पेरेंट्स उनको पीछे से छोड़ के चले जाते हैं, और दे नेवर कम बैक। सो ट्राई टू डेवलप अ हेल्दी रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, और उनकी दुआएं लें, उनकी खिदमत करें, MLE ज़रूर करें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज योर रिसर्च। यार रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें नहीं किसी ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। 4th ईयर में आप लोग इतने जलील होंगे ना इसके पीछे, मैं आपको भी बता रहा हूँ। अभी से आप लोग रिसर्च कर लेंगे, आपको MLE में भी फायदा है, आपको CIP में भी फायदा है, आपको 4th ईयर में भी फायदा है। और आपको कोई ये बात नहीं बताएगा जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को आप गौर से सुने, ये आपको कोई बात नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बात क्या है? वो बात ये है कि आवर प्रोफेसर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने एक पोस्ट रखी है, द बेस्ट स्टूडेंट इन रिसर्च, जो बेस्ट स्टूडेंट रिसर्च में पोस्ट रखी है, और जो रिसर्च करके इंटरनेशनल जर्नल में उसको पब्लिश कराएगा, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने 10,000 का इनाम रखा है। आप अपनी रिसर्च करें, उसको इंटरनेशनल जर्नल में, बड़ा आसान है इसको करना। व्हाट इज रिसर्च? किसी ने पूछना हो मेरे से कि व्हाट इज रिसर्च, वो मेरे से पूछ सकता है। वो डॉक्टर जो है सायरा अफजाल, 4th ईयर की जो प्रोफेसर, दैट इज वेरी गुड, मेरे से नंबर ले सकता है, शी इज़ वेरी गुड, आप उनसे पूछ सकते हैं। सो आप जो है किम काना की वेबसाइट पे जाके हेल्प ले सकते हैं, आप अपने सीनियर से हेल्प लेते हैं। बट और जो होता है ना, एक और मजे की बात, फोरेंसिक वाले, फार्मा वाले, पैथोलॉजी वाले कहते हैं कि किसी ने रिसर्च करनी है तो आ जाए हमारे साथ, यहाँ पे बड़ा फायदा होता है। अब बच्चे कहते हैं छोटे छोटे रिसर्च क्या करनी है, यहाँ पे जो होते हैं ना वो प्रोफेसर जो होते हैं वो अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, और आपका नाम मुफ्त में बीच में आ जाते हैं, आप जाके उनके थोड़े बहुत काम कर देते हैं, डाटा कलेक्ट कर देते हैं, और प्रोफेसर्स की पैथोलॉजी की रिसर्च में आपका नाम आ जाता है, और वो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो जाती है। आप उसको फिर क्लेम भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सो मेरे क्लास में एक लड़का है, उसने 15 रिसर्चेस कर ली हैं बिफोर ईयर में, और मैम ने उसकी इतनी तारीफ की, हम सब के सामने हमारी सबकी बेइज्जती की, और कितनी तारीफ की। एट दैट टाइम आई फेल्ट कि मुझे 3rd ईयर से स्टार्ट करना चाहिए था, बट ही स्टार्टेड फ्रॉम द सेकंड ईयर। तो आप रिसर्च करें। रिसर्च इज व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज एनीथिंग न्यू, कोई आप न्यू डिस्कवर। आप ये देखना चाहते हैं किंग हॉस्टल में बॉयज में कितने लोग सिगरेट पीते हैं, और डे स्कॉलर्स में कितने लोग सिगरेट पीते हैं, दैट इज योर रिसर्च। यू विल कलेक्ट डाटा, फिर आप उसको पब्लिश कर देंगे कि इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स इतने हैं। सो ट्राई टू डू रिसर्च फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 3rd ईयर। आप इसमें ना, वो आपको पता है बहावलपुर के जो हैं रिटायर्ड हुए हैं प्रोफेसर जावेद अकरम, जो प्रिंसिपल थे, उनके ना वो जो मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू अपने यूट्यूब पे चैनल डालते हैं, उन्होंने अपना एक स्टार्ट किया है यूट्यूब पे रिसर्च के ऊपर। आप उनको सुने, लेक्चर सुने, यू विल बी नोइंग व्हाट इज रिसर्च, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और CIP में रिसर्च के भी उतने मार्क्स होते हैं जितने डिस्टिंक्शन के होते हैं। सारी जिंदगी डिस्टिंक्शन के पीछे मर ना जाएं, रिसर्च एक कर लें, 2 कर लें, आपको डिस्टिंक्शन से ज़्यादा फायदा हो जाएगा। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ब्रीफ रिव्यू, और काफ़ी मैंने इसको एक्सटेंसिव वे में और इन डेप्थ बता दिया। आई होप कि आप सबको जो है वो फ़ायदा हुआ होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ाए फिद दारैन।
और जो है लास्ट थिंग जो मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट जो रह गई कि आई वुड लाइक टू थैंक योर सीआर, स्पेशली योर सीआर. ही रिक्वेस्टेड मी और ही प्रोवाइडेड मी एन अपॉर्चुनिटी टू टेल यू सम थिंग्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, और एक ही प्रोवाइड मी अ प्लेटफॉर्म बेसिकली. और उसके बाद जो मैंने बड़ी अच्छी अप्रिशिएट करने के लिए चीज़ मिली कि जो दोनों कंटेस्टेंट्स थे, जो सीआर्स थे, दे आर वर्किंग टुगेदर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. योर रिलेशन विद योर कोलीग्स एंड द कोऑपरेटिव वर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. जो होती है ना बायस इंसान के अंदर या फिर इंसान के अंदर नफरत होती है कंटेस्टेंट्स के थ्रू, लेकिन देखिए अभी आपका जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद ही इन दोनों कंटेस्टेंट्स ने एक होस्ट बन गया और एक ने कंडक्ट करवा लिया, और एक ने रिक्वेस्ट किया, एक के मुझे मैसेज आ रहे हैं फिर दूसरे के आ रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर कोलीग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, ट्राई टू डेवलप पॉजिटिव मेमोरीज, ट्राई टू डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप विद. जब आप यहाँ से जा रहे होगे ना उसको याद करेंगे. सो जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ाई फिद दारैन. अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की जो है ना वो कामयाबी अता करें. सो ओवर टू अली. Jazakallah bhai, thank you so much for this presentation. Now, if there are any questions that anyone would like to ask, you can ask them in the chat and I would relay them to Ubaid bhai. Any questions that you would like to ask him? Anybody wants to raise a hand to ask a question? ओके भाई, सिबगा अब्बास कह रही हैं कि आपके व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक चाहिए. सो वो आप लोग शेयर कर दें, कोई मसला नहीं है. और जो पीडीएफ्स है ना आपके, वो किम यूनाइटेड भी पढ़े हैं. मेरी ये अप्रोच होती है बेसिकली ना, मैंने बॉयज़ के लिए ग्रुप बनाया था जो मेरे आसपास के लोग थे, उनके लिए मैंने ना एक अली प्लीज अपना माइक जो है ना वो म्यूट करना. सो मैंने उनके लिए बेसिकली वो ग्रुप बनाया था जो आज तो वो बढ़ता गया. उसमें सेकेंड ईयर के लिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है. सो फोर्थ ईयर के लिए भी ग्रुप बनाया हुआ है. सेकेंड ईयर के लिए तो 257 रीच हो गए थे तो 2 ग्रुप बना दिए. सो बेसिकली मेरे पास ना काफ़ी मटीरियल पड़ा होता है, कोई मेरा इतना टाइम नहीं होता है ना, मैंने किसी मकसद के लिए बनाया हुआ है. सो मैं उसमें शेयर कर देता हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, मैं उसके साथ चीज़ें जो है वो शेयर कर देता होता हूँ. सो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन कर लें ग्रुप को. उसका लिंक आप लोग की अली से ले लें, अली आपसे शेयर कर देगा. उसमें मैं PDF, कोई मुझे नहीं कहता कि आप, मुझे पता होता है कि अब आपका ये टेस्ट चल रहा है, ये चल रहा है, मैं खुद ही उसमें शेयर कर देता हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम. में उसमें चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ. अगर आपको आना है, येस यू आर मोस्ट वेलकम, आप उसमें आप लोग आ सकते हैं. और उसमें PDFs आपको मिल जाएंगे, आपको किम यूनाइटेड से PDFs मिल जाएंगे. और बिग एडसन इज़ नॉट अवेलेबल इन गुड फोन, और बहुत छोटा है, कैन रीड. उसका जो फ़ॉन्ट है ना वो बड़े वाला में भी है, उसका बड़े वाला में भी है. और अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, यू कैन यूज़ वो क्या कहते हैं उसको स्पाई ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. एनी अदर क्वेश्चंस? भाई जो लेक्चर्स आ रहे हैं उनको सुने. अगर आपको बोरिंग लेक्चर दिख रहे हैं, अगर आपकी रमज़ान की रूटीन जो है वो उसमें डिस्टर्ब हो रही है, सो आप ना सुने उनको. और बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ लेक्चर्स इन थर्ड ईयर. आपको कैप्लान के लेक्चर्स मिलेंगे, आपको हर चीज़ के लेक्चर्स मिलेंगे, आपको मतलब कि स्केची के लेक्चर्स मिलेंगे, आपको फ्रेंजिक के तो लेक्चर्स की ज़रूरत ही नहीं है, और वो बुक की है. तो अगर आपका नहीं है, वैसे सुनना चाहिए. एक प्रोफेसर है, वो लेक्चर प्रिपेयर करके आपसे कोई बात करना चाह रहा है, सो ट्राई टू लिसन. लेकिन आप ये है कि उसको कर सकते हैं. भाई एक ही क्वेश्चन था कि रिसर्च के लिए हमें किसी मेंटरशिप, मतलब किसी प्रोफेसर के पास जाने की जरूरत है, या फिर हम खुद ही रिसर्च करके खुद ही पब्लिश कर सकते हैं? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू कैन जो है ना, आप जो खुद भी कर सकते हो, लेकिन यू नीड अ सुपरवाइजर. यू नीड अ सुपरवाइजर. आपने रिसर्च करनी है किसी भी डिपार्टमेंट में, दैट डिपार्टमेंट, द प्रोफेसर ऑफ दैट डिपार्टमेंट इज योर सुपरवाइजर. लेकिन आपका सुपरवाइजर पहली रिसर्च में एटलीस्ट होना चाहिए लाजमी. वो आपको बताएगा ये आपकी गलतियां हैं, वरना आप रिसर्च जमा कराओगे, आप अपने उस पर पैसे लगाओगे, एट द एंड आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और वो ज़ाया जाएगी और आपको दिल टूट जाएगा. आप प्रोफेसर के बजाय सारा काम आपको प्रोफेसर करेंगे, और प्रोफेसर का सिर्फ ये मकसद होता है कि हमारा नाम आ जाए. प्रोफेसर की भी रिसर्च में बड़ा हो जाता है, और आपका सेकंड नाम आपका होता है. सो ये रिसर्च जो होती है ना, एक क्वेश्चन पूछा हाउ टू डू रिसर्च. सो जो रिसर्च करना किस तरह, ये मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, इसकी ऑडियो शेयर कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा. आप, मैंने आपको बताया जवेद, प्रोफेसर जवेद इकबाल, दैट इज प्रोफेसर जवेद इकबाल, सॉरी, प्रोफेसर जवेद इकबाल जो है ना, जो भावलपुर मेडिकल कॉलेज के हैं, आप उनसे कर लें. विच वन इज बेटर. अच्छा, तो आप जो है ना सुपरवाइजर रखें ज़रूरी. अब प्रोफेसर के पास जाएं, आप कम्युनिटी मेडिसिन में जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पास जाएं, आप जो है कम्युनिटी मेडिसिन में दूसरे प्रोफेसर के पास जाएं, आप अपने सीनियर्स के पास जाएं जिन्होंने रिसर्च की है.
आप उनसे पूछें। रिसर्च जो है ना, देखें आपकी एक थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज हो रहा है, साइड वर्क हो रहा है, और आपकी जो है डिस्टिंक्शन, आप जिसकी रिसर्चेज ज्यादा है ना, आई रिपीट अगेन, अगर उसकी 15 की 15 डिस्टिंक्शंस भी हैं, हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शंस हैं, द रिसर्च वन विल बी सुपीरियर। वो जो रिसर्चेस जिसकी हुई है ना, वो सुपीरियर होगा। आप प्रोफेसर जवेद अकरम की देख लें, जो यूएचएस के वाइस चांसलर हैं, he has more than 400 research papers. He had more than 400 research papers, and he had supply in some subject, I know. उसकी सप्ली भी थी कि सब्जेक्ट्स में, और उन्होंने फोर्थ में शादी भी कर ली थी, तो बड़ा उनके जो है, फिर भी देखें कि he has more than 400 research papers. So try to do research, और कैसे करनी है वो आपको सब मेरे से पूछ लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है अली? भाई एक ही क्वेश्चन था कि विच वन इज मोर बेटर, मिनी कैटसन, बिग कैटसन या मीडियम कैटसन? अच्छा देखें, जो मिनी कैटसन है ना, ये तो बेसिकली कोई बुक है ही नहीं वैसे, लेकिन आपको सारे कहेंगे मिनी कैटसन पढ़ें, क्योंकि देखें सारों ने ये पढ़ी होती है, क्योंकि उन्होंने साथ कैप्लान पढ़ा होता है। सो जो मैंने वैसे पीडीएफ के अंदर ना, जो चीज़ें मैंने डाली हुई है पीडीएफ के अंदर ना, आप उसको देखें, वो आप मिनी से पढ़ें, मीडियम से पढ़ें, बिग से पढ़ें। वो जो पीडीएफ के अंदर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, कि ये क्लासिफिकेशन है, ये हेडिंग्स हैं, ये इस चीज़ का ही आना चाहिए, वो आपको लाजमी आना चाहिए। वो जहां से भी आप करें आपको लाजमी आना चाहिए। कि मतलब उस पीडीएफ के अंदर मैंने बड़ी उसको मेहनत से बनाया, आपकी सोच से भी ज्यादा उसको, उसमें जो लिखी हुई है चीजें, क्लासिफिकेशन, वो आप करें। उसमें जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने उसमें डिटेल्स नहीं, मैंने लिखा है कि जिस तरह लिखा है इंसुलिन की टाइप्स, अब आप टाइप्स किसी बुक से भी करें, फिर मैंने लिखा है इंसुलिन का एक्शन, वो आप एक्शन की, तो जो उस पीडीएफ के अंदर चीजें हैं ना, वो आपको आनी चाहिए। वो आप मिनी यूज करें, बिग यूज करें, क्योंकि उसमें से आपको कुछ चीजें मिनी में नहीं मिलेंगी, कुछ में आपको बिग में मिलेंगी, कुछ में बिग में नहीं मिलेंगी। सो इस तरह आपकी ब्रांच होनी चाहिए। इसी वजह से जो है ना, थोड़ी सी फार्माकोलॉजी में मुझे ये इशू आया था कि बुक्स थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ती हैं। आप लोग जाएंगे कैप्लान पढ़ के भी लोग डिस्टिंक्शंस लेते हैं, कैप्लान आप पढ़ें, अच्छी है। सो उसके लिए भी मैंने कोशिश की थी कि मैं एक बुक पब्लिश करूं फार्माकोलॉजी प्रोफेसर के साथ, तो वो अंडर प्रोसेस थी, पता नहीं कब आएगी। तो फार्माकोलॉजी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी थर्ड ईयर में ना, और अभी भी अच्छी लगती है। और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? भाई एक ही क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में फोरेंसिक मेडिसिन का कोई स्कोप है? यस, आप बहुत स्कोप है फोरेंसिक मेडिसिन। मैं एक सिर्फ आपको एग्जांपल दूंगा। हम फोरेंसिक मेडिसिन में टॉपसी में थे ना, तो एक डेड बॉडी आई, वहां पे एक डेड बॉडी आई, एक बच्चे की, एक उसकी वालिदा की, एक उसकी अब्बू की, ठीक है, फादर की। उनके सीने पे गोलियां लगी हुई थी, ठीक हो गया। अब पुलिस डेड बॉडी लेकर एक गाड़ी में, इन तीनों की डेड बॉडी मिली, और रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इस बंदे ने अपनी बीवी को, अलहदा वैसे इस्लामाबाद गया हुआ था, उसकी बीवी और बच्चा, तो उसने बुलाया कि हम सुलह करते हैं दोबारा, उसने बुला के उनको गोली मार दी, रिपोर्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। अपनी अपनी ये जो टीरियन पॉइंट होता है और जो कन पट्टी कहते हैं, वहां पे उसकी गोली लगी हुई थी, औरत के सीने पे लगी हुई थी, बच्चे के सीने पे लगी हुई थी। मैं तो देख के बच्चे को बेहोश होने वाला था वैसे। तो बेसिकली आपको यहाँ से पता लगेगा पाकिस्तान में फोरेंसिक मेडिसिन का क्या स्कोप है। सो वो जो उसको गोली लगी हुई थी ना, तो रिपोर्ट में लिखा हुआ था, और हमें भी ये लग रहा था कि उस बंदे ने अपने आप को पहले गोली मारी है, फिर बच्चे को गोली मारी है, फिर औरत को गोली मारी है, और गाड़ी अंदर से बंद थी। When the forensic expert, the forensic autopsy expert ने जब उसको करना शुरू किया, जो हमारी टीचर थी, उन्होंने उसको जो है स्कल को कट किया, और उसके एंगल को एक वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, और वर्नियर कैलिपर से मेजर करने के बाद हमें कहती हैं, यू ऑल नो दैट, फिर उन्होंने रिपोर्ट में लिखा, पुलिस के लिख के दिया कि ये बंदा इस एंगल से अपने आप को गोली मार ही नहीं सकता। ये बंदा इस अपने एंगल से, मतलब ये था कि उन तीनों को किसी और ने गोली मारी थी, और वो पिस्टल जो थी उसके हाथ में पकड़ा दी थी। या फिर आप देखें कि कोई आपके पास कोई लड़की आती है, कोई लड़का आता है, फांसी पंखे पे लटका हुआ है, आपको यही होगा कि उसने सुसाइड किया खुद। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फोरेंसिक मेडिसिन का क्या स्कोप है, आगे बताता हूँ। उसने सुसाइड किया खुद। अब आप उसको ऑटोप्सी करते हैं फोरेंसिक मेडिसिन में जाके, और उसके स्टमक में देखें आपको पॉइजन मिलता है, आपको पता लगता है कि किसी ने इसको पॉइजन खिलाया और किसी ने इसको लटका दिया है खंबे के ऊपर या पंखे के ऊपर। सो फोरेंसिक मेडिसिन का बड़ा स्कोप है। ये जो है ना, इसके अंदर यू विल बी एग्जामिनिंग, आप इमरजेंसी में जाए, मैं हॉस्पिटल में एंटर हो, इमरजेंसी में लेफ्ट पे एक बहुत बड़ा कैबिन पड़ा है, एमएलसी कैबिन, लेफ्ट में बहुत बड़ा कैबिन है, एमएलसी मेडिको लीगल क्लिनिक। वहां पे जितने पॉइजनिंग के केस होते हैं, जो चोर पकड़े जाते हैं, या गन शूट्स होते हैं, या फिर जो गन वुंड्स होते हैं, या लेसिरेशंस होती हैं, छुरी मार दी, चाकू मार दी, वो पहले वहां जाते हैं। वो डॉक्टर फिजिशियन के पास नहीं जाते कि पट्टी कर दो इसको, वो पहले वहां जाते हैं, वहां पहले इसको फोरेंसिक एक्सपर्ट देखते हैं। अगर फोरेंसिक एक्सपर्ट ना लिखे पेपर के ऊपर के रेफर टू फिजिशियन, अगर आई रिपीट अगेन, अगर फिजिशियन इन केसेस में से किसी को हाथ भी लगा ले, फिजिशियन फंस जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी फिजिशियंस हैं ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन फोरेंसिक मेडिसिन।
फोरेंसिक एक्सपर्ट, ये फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुला के अपने केसेस डिस्कस करते होते हैं। और जो भी कोई मीटिंग होती है किसी केस की ना, जब गोली की, चाकू की, छुरी की, पॉइजनिंग की और अननेचुरल डेथ की, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, बम, जो बम ब्लास्ट होते हैं, सबसे पहले वहाँ फोरेंसिक एक्सपर्ट जाते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान हायर करती है फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को वहाँ पे। और फोरेंसिक मेडिसिन इटसेल्फ इज चिल डिपार्टमेंट। आप अगर इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, इसमें अपना स्कोप बनाना चाहते हैं, तो आपका जो स्कोप इतना है कि इसमें इतना काम भी नहीं है, और इसमें जो है ना क्रिटिकल सोचना, इतना पढ़ने वाला भी नहीं है, और इसमें पैसा भी बड़ा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्कोप है फोरेंसिक मेडिसिन का पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई यहाँ पे ये कमर ने पूछा कि ये रैंक एंड डेल फार्माकोलॉजी कैसी है? रैंक एंड डेल फार्माकोलॉजी, इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, ना मैंने कभी किसी भी यूएचएस में या किसी में सुना है। ये इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। आई डोंट नो अबाउट दिस बुक। ओके भाई, और यहाँ पे आयशा का क्वेश्चन था कि स्केची की और कैप्लान की वीडियोस कहाँ से डाउनलोड करें? कैप्लान की, अच्छा, स्केची की वीडियोस जो थी ना वो अवेलेबल थी टोरेंट्स पे। वैसे मेरे पास लिंक है स्केची माइक्रो का, वो ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप में। अच्छा, जो इसकी थी ना वो टोरेंट्स पे अवेलेबल थी, डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल थी। अभी मेरे पास लिंक पे अवेलेबल है, वो जल्दी वो भी उसको खत्म कर देंगे। सो उन्होंने ना कॉपीराइट इशू लगा के वो लिंक बंद करते जा रहे हैं स्केची। और कैप्लान की तो भी डाउनलोड हो जाती है, डिफरेंट लिंक्स होते हैं। लेकिन आपको एक काम की बात आता हूँ, आप लोग आज ही जाके इंस्टॉल करें टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। स्केची माइक्रो भी मिल जाएगी और कैप्लान भी। जितने भी लिंक्स थे ना वो सब ब्लॉक करी जा रहे हैं लोग, किस वजह से, इस वजह से। और उसके अलावा सीनियर्स के पास आपके भरे पड़े होते हैं लैपटॉप। मेरा लैपटॉप भरा पड़ा है। अब मैं यूनिवर्सिटी आऊंगा, कोई मेरे से लेके शेयर कर ले सबके साथ और ड्राइव में ले ले। मेरे पास सारी कैप्लान की, स्केची की सब पड़ी हुई है। और यूट्यूब पे भी स्केची की पड़ी होती है, लेकिन वो टायरिंग होता है कि आप हर थोड़ी थोड़ी बार स्केची जाके खोल के देख रहे हैं। सो आप भी कर सकते हैं, और स्लाइड्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी और क्वेश्चन हो? नो वन? ठीक हो गया। ओके, आई गेस भाई इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड थैंक यू सो मच उबैद भाई, आपने हमें टाइम निकाला और हमें इतना अच्छे से गाइड किया। किसी एक क्वेश्चन आया भाई, आप ग्रुप में नहीं, अब ये तो नहीं मैं बता सकता ना कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा लेक्चर सुनना है, कौन सा नहीं सुनना। मुझे क्या पता कौन सा पढ़ा रहा है टीचर, कौन सा पढ़ा रहे हैं। आप अटेंडेंस लें, आप अटेंडेंस पूरी करें। मैंने आपको पहले बताया, आप अपनी पूरी अटेंडेंस करें। अच्छा, ये अभी जो है ना, किसी ने मुझे पता लग गया, कोई बच्चा नेम चेंज करके आया है डेली रूटीन के नाम से ना कोई नई आईडी से अपनी आया है, ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने के लिए। अच्छा, एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट, असल चीज तो रहेगी टॉपिक की, अभी इसको लेफ्ट ना करें। असल चीज तो रहेगी, एक चीज रहेगी हमारी, दैट इज योर वर्ड्स। थर्ड ईयर में वर्ड्स को क्या करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड्स को क्या करना है हमने थर्ड ईयर के अंदर। आपके वर्ड्स तो अभी स्टार्ट में बेसिकली आपको जो सही फीलिंग आना शुरू होती है वो थर्ड ईयर में आना शुरू होती है वर्ड्स के। यू स्टार्ट फीलिंग डॉक्टर। आप आप जो है ना उसके अंदर जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, आप ओटी किट पहनते हैं, आप जो है स्टेथोस्कोप रखते हैं और मरीज से बजा कहते हैं, और आपको हिस्ट्री टेकिंग सिखाते हैं ना। हिस्ट्री टेकिंग में होता है कि आपने किस तरह अप्रोच करना है डॉक्टर को। आप जाके क्या करते हैं, आप जाके करते हैं, सॉरी, पेशेंट को अप्रोच करना, आप जाके उसको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली आबिद है और मैं शोभा। ये आप चीज़ें सीखते हैं और दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपकी जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो ना, तो वर्ड्स आपको कोई भी कहे, कोई सीनियर भी कहे, रिमेंबर। अभी ना मैंने फर्स्ट ईयर के लिए किसी ने गाइडेंस सेमिनार किया, अभी जो न्यू फर्स्ट ईयर, उसने मुझे ही बुलाया था कि आप थोड़ा गाइडेंस करें ना। तो मैं अगर उसमें गया, ये इस बंदे को मैं निकाल रहा हूँ, ये जो कमेंट कर रहा है ये जो मैसेजेस कर रहा है ना, इस अच्छा, तो ये हुआ कि मैं आपको बता रहा था कि फोर्थ में वर्ड्स होते हैं ना। आप देखें, जब मैंने भी फर्स्ट ईयर गाइड किया ना, तो मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए व्हाट्सएप पे। काश मैं आपको व्हाट्सएप के मैसेज यहाँ पे ऑडियो चला के सुना सकता। उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार उबैद, बच्चे आगे ना, इनको सही गाइड करना, इनको ये बता देना कि जो सीनियर्स होते हैं ना, ये कुछ सही नहीं गाइड होते। ये जो कहते थे चिल है, आपने खुद देखा होगा, अभी भी आप कहते होंगे उनको चिल है आखिर में पढ़ लेना, लेकिन आखिर में बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी आपने देखा होगा प्रॉफ में कितना डिप्रेशन होता है। सो आप ना वर्ड्स को भी और इनको सांस लें। आपको लोग कहेंगे माइनर है, आप यहाँ से लेना शुरू करेंगे ना वर्ड्स, तो आपको पता लगेगा व्हाट इज डर्माटोलॉजी। कई के इतने अच्छे हैं, इन्होंने इस हमारी बारी से ना वर्ड्स चेंज कर दिए हैं फोर्थ थर्ड ईयर में।
किसी भी आप पूरे पाकिस्तान में चले में किसी में भी थर्ड ईयर में आपको जो है प्लास्टिक सर्जरी की वार्ड नहीं लगा हुआ, किसी में भी थर्ड ईयर में आपको पीड्स नहीं पढ़ाते, किसी में भी थर्ड ईयर में आपको एनाटमी या वो सर्जरी मेडिसिन नहीं वार्ड देते, किसी में भी थर्ड ईयर में आपको जो है वो डर्माटोलॉजी का वार्ड नहीं लगता, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको थर्ड ईयर में यूरोलॉजी का वार्ड नहीं लगता, किसी भी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपका कार्डिक सर्जरी या कार्डियोलॉजी का वार्ड नहीं लगता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने आपके लिए जो है ना वो किए हैं, वो वार्ड्स बनाए हैं। आप वार्ड बैजेस बनेंगे जिस तरह बनते हैं, आप वार्ड्स लें, डेवलप इंटरेस्ट, और वो आपके वार्ड टेस्ट होंगे ना, उसके एक लाजमी बात सुन लें, उसके कार्ड आपको कार्ड मिलेंगे। कीमियो की एक वो है क्या कहते हैं स्टेशनरी है पटियाला ब्लॉक में, आपने अभी तक नहीं देखी होगी, वहां से आपको सारी क्लास को कार्ड्स मिलेंगे फ्री ना, येलो कलर के। जब आपका वार्ड टेस्ट होता है उससे अगले दिन ही आपका जो बैच का बीआर है वो वार्ड कार्ड साइन करा ले। वो नहीं कराते फिर, क्योंकि आपकी फाइनल ईयर में थर्ड ईयर के वार्ड कार्ड के मार्क्स हैं 5 मार्क्स हैं, किसी को पता नहीं है, ठीक है। थर्ड ईयर में आपके जो है वार्ड कार्ड के जो है ना वो मार्क्स हैं, सो उनको आप जो है वो लाजमी करें। कुछ लोग साइन नहीं कराते वार्ड कार्ड्स, और मेरे जैसे तो वो आखिर में फाइनल ईयर में भी फंस रहे होते हैं, उनके 5 मार्क्स कम हो जाते हैं। फाइनल ईयर की आप क्यों अफेक्ट कर रहे हैं थर्ड ईयर से? सो उसमें मेडिसिन पढ़ें, सर्जरी पढ़ें, हर चीज़ पढ़ें आप लोग ना, और उसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट होगा। आप लोग जाएंगे, आप मरीज देखेंगे, फर्स्ट आपसे मरीजों के साथ इंटरेक्शन होगा, सो वार्ड्स को अपने साथ लेके चलें। और कोई क्वेश्चन है काम का क्वेश्चन? भाई वार्ड्स के अंदर जो आप कह रहे हैं कार्ड जाके साइन करवानी, किससे साइन करवाएंगे जाके? ये आपको साफ पता लग जाएगा। आपका ना हर वार्ड में आपका एक लीडर होगा, जो पीजी होगा एक, वो आपको बताता रहेगा क्या क्या करना है। लेकिन ये कि वो कहता है ना कि कार्ड सबमिट करा दें मंडे को, कोई भी नहीं कराता, वो कहते हैं हम करा लेंगे। फिर इस तरह अगले साल, क्योंकि सर्जरी मेडिसिन फोर्थ ईयर में नहीं है, पहले होती थी, वो भी नहीं होगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है ना इसको लाजमी कर लें। हैंड रेस किया था किसी ने, उससे भी पूछ लें अगर कोई और क्वेश्चन है तो। भाई ये क्वेश्चन ये था कि जो माइनर वार्ड्स की अटेंडेंस काउंट होती है या नहीं होती? माइनर वार्ड्स की अटेंडेंस जो है वो काउंट, आपकी जो है ना मेडिसिन और सर्जरी की अटेंडेंस भी काउंट नहीं होती। आपकी मेडिसिन और सर्जरी की जो अटेंडेंस है वो कहाँ काउंट होती है? फाइनल ईयर में, वो फाइनल ईयर में होती है, और बाकी इसकी अटेंडेंस काउंट नहीं होती माइनर की। लेकिन माइनर जो वार्ड्स है ना आप लाजमी लें। टीबी का ना लें, टीबी में जरा ना पल्मोनोलॉजी में आजकल कोरोना भी है और टीबी भी है, हमने खुद नहीं लिया। यूरोलॉजी का मैंने नहीं लिया था क्योंकि वहाँ स्मेल बड़ी होती है, वहाँ नहीं अक्सर लोग जाना चाहते। सो एक सेकेंड, इसको तो मैं निकालू ना यहाँ से, ठीक हो गया। तो उसकी जो है ना वो तो वो आपको ना यहाँ से आपको क्योंकि आपके फाइनल ईयर में भी यूरोलॉजी नहीं होना। आप अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा यूरोलॉजिस्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट, डर्माटोलॉजी का भी वार्ड है थर्ड ईयर में, तो डर्माटोलॉजी में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, या आपको हाउस जॉब में भी नहीं मौका मिलेगा डर्माटोलॉजी करने का। सो आप ना अपने लिए कि ये इसलिए बनाया गया कि किसी का प्लास्टिक, अब मैं प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में गया ना, तो मेरा प्लास्टिक सर्जरी में इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं वहाँ खड़े खड़े सोच रहा था कि मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ फ्यूचर का। अब मैं कार्डियोलॉजी वार्ड में गया, मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैं वहाँ खड़े खड़े सोच रहा था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ फ्यूचर का। मैम ने ईसीजी पढ़ाई, कार्डिक सर्जरी पढ़ाई। अब मैं सर्जरी का वार्ड लेने गया, सर्जरी ओपीडी में हर्निया देखे और मैं सर्जन बना फिर रहा था। तो फिर मैंने जब ऑटोप्सी देखी, मैं सोच रहा था कि ऑटोप्सी में जाऊंगा, हर चीजें। फिर मैंने पीड्स में गया, मैंने छोटे बच्चे देखे और वो उनकी डिजीजेस इतनी खतरनाक थी, ऑन्कोलॉजी देखी, और फिर मैंने सोचा कि अब मैं जो है ना पीड्स में जाऊंगा। सो आप अपने एक्सपोजर को, अपनी फील्ड को असेस करने के लिए कि आपने सर्जरी में आप किसी पूछे आपको क्या कहेगा, मैंने न्यूरोलॉजी में जाना, उसको पता नहीं न्यूरोलॉजी क्या है। न्यूरोलॉजी का भी वार्ड है थर्ड ईयर में। सो इन वार्ड्स को आप लें, हफ्ते के होते हैं टेस्ट, सारे वार्ड नहीं लेते आपके ना घंटा, इतना आपका घंटा 1.5 घंटा वार्ड लेते हैं लोग। आपको एटलीस्ट उस फील्ड का पता लग जाएगा कि इस फील्ड में होता क्या है, कैसे चलना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या मैं इस फील्ड को फ्यूचर में रख सकता हूँ, क्या मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। मेंबर कोई प्लास्टिक सर्जरी का सब्जेक्ट नहीं है एमबीबीएस में, कोई यूरोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है एमबीबीएस में। क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको एक सेपरेट फील्ड है ना यूरोलॉजी, एक सेपरेट फील्ड है प्लास्टिक सर्जरी। सो आप इस तरह वार्ड्स लाजमी लें। मैंने कुछ नहीं लिए, थोड़े बहुत, लेकिन मैं पछताता हूँ, लेकिन लाजमी लें। और भाई एक ही क्वेश्चन था ज़िया का कि आपने क्या प्लान उस स्केची के लेक्चर्स का बताया, इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं तो वो भी काइंडली बता दें। इसके अलावा लेक्चर्स आपको बड़े मिलेंगे, फुल लेक्चर जो है ना भरे पड़े हैं उसके अंदर यूट्यूब के अंदर। लेकिन जो अच्छे लेक्चर्स हैं, जो रिकमेंडेड लेक्चर्स हैं, क्योंकि आपको लेक्चर में ना डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, कोई कंट्राडिक्शंस मिलेंगी। और एक इंडियन है, उसके भी बड़े अच्छे लेक्चर, उसका नाम है, ग्रुप में शेयर कर दूँ, मुझे भूल गया।
सो लेक्चर्स काफ़ी हैं, लेकिन ये लेक्चर्स जो है ना ये जो है यही सबसे इम्पोर्टेंट है, कैप्लान और स्केची। इतने ज़्यादा लेक्चर ना सुनेंगे, लेक्चर ही सुनते ना, बुक को देखे भी ना। सो कैप्लान और स्केची के लेक्चर जो आपको टेलीग्राम ऐप पे जाके आप सर्च करें कैप्लान, तो ग्रुप खुल जाएगा कैप्लान को, उसके अंदर लेक्चर्स पड़े होंगे। आप लिखें कैप्लान फार्माकोलॉजी, आप लिखें स्केची फार्माकोलॉजी, स्केची माइक्रोबायोलॉजी, तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन हैं? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अभी बता लें। ये पता नहीं कौन है, बार बार हैंड रेज कर रहा है, रोल नंबर पता नहीं क्या, उससे पूछ लो कोई क्वेश्चन है तो। किस हैंड रेज करने वाले अगर कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन और टाइप नहीं कर पा। अच्छा, डॉक्टर नजीब के जो लेक्चर्स हैं ना वो नहीं Okay. है इतने ठीक, 3rd ईयर 4th ईयर के लिए नहीं है वो लेक्चर्स डॉक्टर नजीब के। एनी अदर क्वेश्चन? फिर हम इसको एंड करने लगे, बस 12 बज गए। तो वो भाई किसी के क्वेश्चन, हाँ जी मैं कह रहा था आपके किसी के क्वेश्चंस हो तो वो मेरे से बाद में भी पूछ लें, कोई किसी और का कोई क्वेश्चन है, किसी ने हैंड रेज किया हो? चलिए ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच भाई फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड एवरीवन एल्स। उम्मीद है कि आप सबको इससे फायदा हुआ होगा और आप लोगों को इससे हेल्प फ्यूचर में। अगर और किसी का क्वेश्चन है तो वो भाई से बाद में भी रब्ता कर सकते हैं। और भाई जो स्लाइड्स हैं वो मैं भाई के थ्रू, भाई मुझे सेंड करेंगे तो मैं ग्रुप के अंदर भी फॉरवर्ड कर दूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमजान का आखिरी इशरा चल रहा है, तो आई प्रे कि अल्लाह पाक हम सब के रोज़े कबूल फरमाए, हमारे कुरान मजीद का पढ़ना सुनना कबूल मंजूर फरमाए, और कोशिश करेंगे आखिरी इशरे के अंदर भी थोड़ी ज़्यादा जोर लगा लें और शब कदर को पाने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। ओके एवरीवन, टेक केयर। ठीक है भाई, अब मीटिंग एंड करते हैं।